कि साडी कांग्रेस पार्टी इन्नी विशाल है और साडे कोल कुछ इदां दे सत्कारयोग लीडर्स हैगे जिहड़े हर मसले दा हल हैगा जिहड़ा बट साडे जिहड़े अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ जी ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ रल के लड़ूगी और तगड़े होकर लड़ूगी और बिल्कुल 100% सरकार बनाओ। अब आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो मसले हल करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर वो नेता ही मसला बन जाए तो फिर कैसे की बात बनेगी? असि तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। वर्कर तो वफादार है, अगर नेता गद्दार हो जाए तो फिर कैसे करें? तो उसकी कोई बात नहीं, वो इधर ही आएगा, घूम फिर कर इधर ही आना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो पिछली सरकार में जो 17 से 22 तक की सरकार थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री के ओएसडी थे गुरप्रीत सिंह सोनू ढसी साहब। उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि जो वर्तमान में संकट है कांग्रेस पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और जो मसला चल रहा है वो मसला कैसे हल होगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से भूपेश बघेल बैठे हैं और बहुत सारे नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और ऐसे कई महत्वपूर्ण नेता अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो ढसी साहब से बातचीत करते हैं, गलबात करेंगे। ढसी साहब, ये मसला कैसे हल होगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम देख रहे हैं बस इंतजार इंतजार और इंतजार। ਜਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 17 ਤੋਂ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, IYC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.25 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ 14 ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ, 14ਵੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, 14 ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ रल के लड़ूगी और तगड़े होकर लड़ूगी और बिल्कुल 100% सरकार बना लाएंगे। साहब, आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो मसले हल करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर वो नेता ही मसला बन जाए तो फिर कैसे की बात बनेगी? नहीं, नेता मसला नहीं कोई भी बना। अगर वो मसला खुद बन जाए, आप अगर कह रहे हैं कि वो मसला खुद ही बन गया तो खुद ही वे सॉल्व करेंगे ना, सानू पूरा यकीन है क्योंकि हर मसला हल वो करते हैं और ये भी होगा। और साढ़े बड़े सत्कारयोग है जितों मैं आना, मैं तो यही तुहानू कहना चाहूँगा कि मजाक अपार्ट पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस का मिश्रण है जी, अलग अलग लोग, अलग अलग माइंडसैट और अलग अलग। असी तो मेहनत करनी सी, तो वर्कर लोग हैं, असी लीडर तो है नहीं जी। असी तो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं। सानू साडी कांग्रेस पार्टी ने कहता कि अजय जी तुहाडे प्रधान ने, असी तुहानू आके सवेरे सलूट मार देना।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। तो वर्कर तो वफादार है, अगर नेता गद्दार हो जाए तो फिर कैसे करें? नहीं 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 जहाँ साहब, नेता कोई गद्दार नहीं है। कौन नेता गद्दार है बताइए, ये तो आप मेरे मुंह में लफ्ज मत डालिए। तो मैं आपसे सवाल अब ऐसे पूछता हूँ, जी आपके प्रधान कल बोल दिया प्रभारी जी ने जी कि प्रधान वही रहेंगे। जी प्रभारी भूपेश बघेल सिर्फ प्रभारी नहीं है, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, ये तो आप भी मानोगे। बिल्कुल है जैन साहब। 5 दिन के लिए कोई भी नेतृत्व अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजता है। जी अब वो 5 दिन से यहाँ पे हैं, 5 दिन के लिए आए, 3 दिन निकल चुका है, आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, 2 दिन का समय है। जी अगर वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग नहीं आते हैं मिलने के लिए, तो ये मसला कैसे हल होगा? इसको क्या अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा राहुल गांधी और खड़गे साहब के खिलाफ? आप कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं आता, अगर हाँ। अगर शब्द बहुत बड़ा है झा साहब, अगर मैं सब कुछ समेटा नहीं जा सकता, ये आप कह रहे अभी हैं। तक तो यही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके साथ फोन पे बात हो रही है। जैसे कल अब जिला प्रधानों की भी इधर मीट हुई है, 29 में से 4-5 लोग नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपना बताया है कि कोई अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है, कोई किसी का बेटा बाहर से आया है। तो क्या पता जो जिन लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, जो मैं अभी समझ नहीं पाया, तो जिनकी मैं नाम लेके भी बोल नहीं सकता नहीं हूँ, आप भी समझते हो, आप तो इतने अनुभवी आदमी नहीं हो, नहीं नहीं आप जानते हो कि वो कौन लोग हैं जो एक साथ बैठे हुए हैं। बाकी की पूरी पार्टी यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में है। देखिए, कांग्रेस का जो मेन घर है वो तो यही है ना, प्रदेश कार्यालय। घर तो आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है, किसी का कोई रिश्तेदार आया है, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं बाहर किसी काम पे गया हुआ है, तो उसकी कोई बात नहीं, वो इधर ही आएगा। घूम फिर कर इधर ही आना है। पार्टी के बगैर कुछ नहीं है जहाँ साहब, जो मेरे को लगता है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी के मन में ऐसा विचार, मेरे जैसे कार्यकर्ता के कल को मन में विचार आ जाए कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, तो मेरे को जरूर अपने मन की करके देख लेनी चाहिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। समाधान निकल जाएगा, आपको पूरा विश्वास है ढसी साहब की? चन्नी साहब भी, रंधावा साहब भी, परगट सिंह जी भी, भारत भूषण आंसू भी, राणा गुरजीत भी, वो सब इकट्ठे आ जाएंगे यहाँ पे और फिर ऑल इज वेल हो जाएगा या ऑल इज इन वेल हो जाएगा? ऑल इज वेल पहले ही है। और जिन्ने ये तुसी लीडर्स का नाम लिया, साडे वरिष्ठ लीडर्स ने, राणा गुरजीत जी क्या क्या पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं। प्रगट सिंह आपने नाम लिया, वो तो खेलते ही सदा टीम में है। वो तो संदेश भी यही दिंदे है कि टीम च खेलना चाहिए। सो इत्थे वंड वंड के तो कुछ है नहींगा। जिन्ने भी तुसी लीडर्स का नाम लिया, साडी क्रीम है, ये साडे सत्कारयोग है, वो साडे नाल जिहड़े खड़े आ। कोई एडी वड्डी गल नहीं गी, पार्टी की लीडरशिप आई है कित। मेरी गल सुनो जहाँ साहब, हम 2 बेटे हैं परिवार में। अगर हमारी थोड़ी सी कोई किसी बात पे हो जाए, तो बाप बैठा है ना हर मसले का हल करने के लिए। हमारे तो बेटे भी मसलों का हल कर रहे हैं, तो बाप तो है ही है। तो मैं धन्यवाद ढसी साहब, अभी भी उम्मीद कायम है, अभी 2 दिन का वक्त है और जैसा ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सब पार्टी में रहना चाहते हैं और आने वाले वक्त में उम्मीद यही है, या प्रभारी भूपेश बघेल से मिलने वो लोग यहाँ आएंगे, या जैसा कि बघेल साहब ने कहा कि अगर अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि वो चन्नी साहब के पास, रंधावा साहब के पास चाय पीने जाएं और उसके बाद एक तस्वीर सामने आए जिसमें पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पे नजर आए और वो फैसला जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कि राजा वडिंग प्रधान बने रहेंगे, वो सबको एक्सेप्ट हो। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो पिछली सरकार में, जो 17 से 22 तक की सरकार थी और उस वक्त के मुख्यमंत्री के ओएसडी थे गुरप्रीत सिंह सोनू ढसी साहब, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि जो वर्तमान में संकट है कांग्रेस पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और जो मसला चल रहा है वो मसला कैसे हल होगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से भूपेश बघेल बैठे हैं और बहुत सारे नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और ऐसे कई महत्वपूर्ण नेता अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ढसी साहब से बातचीत करते हैं, गलबात करेंगे। ढसी साहब, ये मसला कैसे हल होगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम देख रहे हैं बस इंतजार इंतजार और इंतजार। झा साहब, मैं सब तो पहले तो ये दसना चाहना है कि जे तुसी मसला जड़ा शब्द यूज़ किया है, मसला मेरे हिसाब ना कोई है नहींगा। और पर जे कोई तुहानू लगदा भी पिया मीडिया नू खास कर,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 17 ਤੋਂ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਆਈਵਾਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ 14 ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ, 14ਵੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, 14 ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਲੜੂਗੀ ਔਰ तगड़े होके लड़ूगी और बिल्कुल 100% सरकार बना लाएंगे। ऋषि साहब, आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो मसले हल करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर वो नेता ही मसला बन जाए तो फिर कैसे की बात बनेगी? नहीं नहीं नहीं, नेता मसला नहीं कोई भी बना। अगर वो मसला खुद बन जाए, आप अगर कह रहे हैं कि वो मसला खुद ही बन गया तो खुद ही वे सॉल्व करेंगे ना, सानू पूरा यकीन है क्योंकि हर मसला हल वो करते हैं और ये भी होगा। और साडे बड़े सत्कारयोग है जिथों मैं आना, मैं तो यही तुहानू कहना चाहूँगा कि मजाक अपार्ट पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। तो वर्कर तो वफादार है, अगर नेता गद्दार हो जाए तो फिर कैसे करें? नहीं 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 जहाँ साहब, नेता कोई गद्दार नहीं है। कौन नेता गद्दार है बताइए, ये तो आप मेरे मुंह में लफ्ज मत डालिए। तो मैं आपसे सवाल अब ऐसे पूछता हूँ, आपके प्रधान कल बोल दिया प्रभारी जी ने जी। कि प्रधान वही रहेंगे। प्रभारी भूपेश बघेल सिर्फ प्रभारी नहीं है, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, ये तो आप भी मानोगे। बिल्कुल है, जनरल 5 दिन के लिए कोई भी नेतृत्व अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजता है। जी। अब वो 5 दिन से यहाँ पे हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन निकल चुका है, आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, 2 दिन का समय है। अगर वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग नहीं आते हैं मिलने के लिए, तो ये मसला कैसे हल होगा? इसको क्या अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा राहुल गांधी और खड़गे साहब के खिलाफ? आप कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं आता, अगर हाँ। अगर शब्द बहुत बड़ा है झा साहब, अगर मैं सब कुछ समेटा नहीं जा सकता, ये आप कह रहे अभी हैं। तक तो यही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके साथ फोन पे बात हो रही है। जैसे कल अब जिला प्रधानों की भी इधर मीट हुई है, 29 में से 4-5 लोग नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपना बताया है कि कोई अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है, कोई किसी का बेटा बाहर से आया है। तो क्या पता जो जिन लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, जो मैं अभी समझ नहीं पाया, जिनकी मैं नाम लेके भी बोल नहीं, सकता हूँ, आप भी समझते हो, आप तो इतने अनुभवी आदमी नहीं, हो, नहीं, नहीं, आप जानते हो कि वो कौन लोग हैं जो एक साथ बैठे हुए हैं। बाकी की पूरी पार्टी यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में है। देखिए, कांग्रेस का जो मेन घर है वो तो यही है ना, प्रदेश कार्यालय। घर तो आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है, किसी का कोई रिश्तेदार आया है, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं बाहर किसी काम पे गया हुआ है, तो उसकी कोई बात नहीं, वो इधर ही आएगा। घूम फिर कर इधर ही आना है। पार्टी के बगैर कुछ नहीं है जहाँ साहब, जो मेरे को लगता है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी के मन में ऐसा विचार मेरे जैसे
कार्यकर्ता के कल को मन में विचार आ जाए कि मैं पार्टी से बड़ा हूं, तो मेरे को ज़रूर अपने मन की करके देख लेनी चाहिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। समाधान निकल जाएगा, आपको पूरा विश्वास है ढसी साहब की? चन्नी साहब भी, रंधावा साहब भी, परगट सिंह जी भी, भारत भूषण आसू भी, राणा गुरजीत भी, वो सब इकट्ठे आ जाएंगे यहाँ पे और फिर ऑल इज वेल हो जाएगा या ऑल इज इन वेल हो जाएगा? ऑल इज़ वैल पहले ही है। और जिन्ने ये तुसी लीडर्स का नाम लिया, साडे वरिष्ठ लीडर्स ने, राणा गुरजीत जी क्या क्या पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं। प्रगट सिंह आपने नाम लिया, वो तो खेलते ही सदा टीम में है, वो तो संदेश भी यही दिंदे है कि टीम च खेलना चाहिए। सो इत्थे वंड वंड के तो कुछ है नहींगा। जिन्ने भी तुसी लीडर्स का नाम लिया, साडी क्रीम है, ये साडे सत्कारयोग है, वो साडे नाल जिहड़े खड़े आ। कोई एड्डी वड्डी गल नहीं गी, पार्टी की लीडरशिप आई है कित। मेरी गल सुनो जहाँ साहब, हम दो बेटे हैं परिवार में, अगर हमारी थोड़ी सी कोई किसी बात पे हो जाए तो बाप बैठा है ना हर मसले का हल करने के लिए। हमारे तो बेटे भी मसलों का हल कर रहे हैं, तो बाप तो है ही है। तो मैं धन्यवाद ढसी साहब, अभी भी उम्मीद कायम है, अभी 2 दिन का वक्त है और जैसा ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सब पार्टी में रहना चाहते हैं और आने वाले वक्त में उम्मीद यही है या प्रभारी भूपेश बघेल से मिलने वो लोग यहाँ आएंगे या जैसा कि बघेल साहब ने कहा कि अगर अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि वो चन्नी साहब के पास, रंधावा साहब के पास चाय पीने जाएं और उसके बाद एक तस्वीर सामने आए जिसमें पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पे नजर आए और वो फैसला जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कि राजा वडिंग प्रधान बने रहेंगे, वो सबको एक्सेप्ट हो। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।